Warm welcome to all my dear student and learner. I am Jayaprakash Lakshmi Mahatam, Assistant Professor and Head Department of Mathematics, J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara. Today's discussion topic is higher order linear differential equation with constant coefficient. The content of higher order linear differential equation with constant coefficient are introduction, complementary function, the particular integral, operating method to find particular integral, Euler's equidistance equation to find unknown solution by using known solution, and variation of method of variation of parameter. The introduction. The introduction of higher order linear differential equation is the equation a naught d to the power n y by dxn plus a1 d to the power n minus 1 y by dx to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 y by dx n minus 2 plus that is plus an y equal to x. This is the equation number 1. Here a naught, a1, a2 divided as an are constant, and capital X is either constant or function of x only, is called a linear differential equation of nth order with constant coefficient. अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको डिनोट करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी से डिनोट करेंगे, कैपिटल डी से. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मुझे टू टाइम्स डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर से. दैट इज nth डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे डी टू द पावर कैपिटल n इज इक्वल टू डी टू द पावर n डिवाइड बाय dx n. देन इक्वेशन 1 in the symbolic form can be written as a naught d to the power n y plus a1 d to the power n minus 1 y plus a2 d to the power n minus 2 of y plus that is an of y is equal to capital X. अब LHS से क्या करना है, y को कॉमन निकालो तो ये इक्वेशन मिलेगा. अब सिंपली ये पूरे टर्म को हम डिनोट कर देते हैं f of d of y equal to capital X, where f of d of y f of d is equal to a naught d to the power n plus a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 plus that is an is a polynomial of degree n in d. Second order linear differential equation with constant coefficient. The general form of linear differential equation of second order with the constant coefficient is d square y by dx square plus a dy by dx plus dy is equal to r of x, where a and b are constant and r of x is either constant or function of x only. फिर से हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैपिटल D इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन बिकम्स d square y plus a d of y plus dy equal to r of x. फिर से यहाँ से कॉमन निकालो y, so we get d square plus a d plus b of y equal to r of x, and which is imply that capital F of d of y is equal to r of x. This is equation number 2, where f of d is equal to d square plus a d plus b. ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटर फॉर्म. अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे. The solution of second order linear differential equation is, there are two cases of the solution of second order linear differential equation. First case is if RHS means r of x is not equal to 0, then solution of equation 2 is y is equal to complementary function plus particular integral. अब यहाँ पे स्मॉल y चाहिए था, यहाँ पे कैपिटल y दिया है, तो आप लोगों को समझना है y is equal to complementary function plus particular integral, which is in the short form y is equal to complementary function plus particular integral. Second case है if r of x is equal to 0, then solution of equation 2 is y is equal to c of complementary function only. अब ये कुछ बातें हमें याद करके रखना है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ f of x, d of f of x का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f. तो हम
हमें सिंपल डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अब दूसरा ऑपरेटर है 1/d एफ ऑफ एक्स, का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सभी को पता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स 2 टाइम्स हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। सो इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ डी को हम अब y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी ऑफ y इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन, अब d के जगह में हम पुट करेंगे m, तो वो इक्वेशन बिकेम m स्क्वायर प्लस am प्लस b इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। This is called as an auxiliary equation. By solving above auxiliary equation, we will get two roots, क्योंकि second order है तो दो roots मिलेंगे। Then there are three possibilities as follow. अब एक first को skip ही कर दो यहाँ से, डायरेक्ट second में आते हैं। तो roots are real and distinct, ये दो roots है, वो एक तो real और distinct रहेगा। इसके complementary function बनेगा c1 e to the power mx plus c2 e to the power mx। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है, m1 एंड m2 आर रियल है बट इक्वल है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x e टू द पावर mx, हियर m1 इज इक्वल टू m2 है तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है, ये टू रूट्स m1 एंड m2 आर इमेजिनरी रूट्स, देन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x in bracket c1 cos beta x plus c2 sin beta x इस फॉर्म करेंगे। अगर यही कॉम्प्लेक्स रूट इमेजिनरी रूट्स, if four roots of auxiliary equation all in the form of, तो उसके फॉर्म क्या रहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इन ब्रैकेट c1 cos beta x plus c2 sin beta x plus x e to the power alpha x in bracket c3 cos beta x plus c4 sin beta x। अब ये अबव रिजल्ट का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म और ऑपरेटर फॉर्म। सिंपल पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0 मिलेंगे। यहाँ से कॉमन निकालेंगे y, तो कॉमन निकाल दिए, देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने सभी को आता है, तो फैक्टर मिल पाए हमें m माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स मिल गए हमें m इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। अब ये रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, and therefore a case number first apply होगा। therefore the required control solution is y is equal to complementary function is equal to c1 e to the power x 1x आएगा plus c2 e to the power minus twice x, where c1 and c2 are arbitrary constant। now second differential equation, सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज किया हूँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे साइन चेंज होने की वजह से सिर्फ इसका साइन चेंज होगा रूट का, यहाँ पे देखो -1 और 1 आ गया, बाकी सब सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस 12d ऑफ y इक्वल टू 0। देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 12m इक्वल टू 0। कॉमन निकालो m, सो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में m प्लस 3 आएगा, सेकंड ब्रैकेट में m माइनस 4 इक्वल टू 0, which is implies that m is equal to 0 minus 3 4, and therefore the solution is y is equal to complementary function equal to c1 e to the power 0 plus c2 e to the power minus 3x plus c3 e to the power 4x, where c1 c2 c3 are arbitrary constant। नेक्स्ट प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ साइन चेंज हुआ है, तो रूट का सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे -3 है और +4 है, तो यहाँ पे +3 -4 बाकी सब सेम है। सॉल्यूशन आप लोगों को ये सेकेंड
भी फोर्थ नंबर भी सॉल्व करके रखना है. Then next, solve the differential equation d square x by dt square minus 6 dx by dt plus 9x equal to 0. So given differential equation is this. अब इसको ऑपरेटर फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने. So d square minus 6d plus 9 into x is equal to 0. Therefore its auxiliary equation is m square minus 6m plus m equal to 0. सिंपल d की जगह में हम m पुट कर रहे हैं, उसके फैक्टर निकाल रहे हैं. फैक्टर निकालने के बाद में दो रूट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3. तो ये रियल और रिपीटेड केस नंबर थर्ड है. And therefore the required general solution is x is equal to complementary function in bracket c1 plus c2 t e to the power t. अभी x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है करके x यहाँ पे x is equal to complementary function is equal to c1 plus c2 t e to the power 3t, where c1 c2 are arbitrary constant. Now solve the differential equation d square x by dt square प्लस 6 dx by dt प्लस 9x इज इक्वल टू 0. इसमें भी मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह में प्लस, बाकी सब एज इट इज साइन. तो आप लोगों को ये भी फिर से सॉल्व करके रखना है. सिर्फ साइन चेंज होगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये फोर्थ ऑर्डर है और डिग्री 1 है करके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिए. ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में वहाँ से कॉमन y निकाल दिए, तो ब्रैकेट के अंदर भी ये बचेंगे. देन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m टू द पावर 4 माइनस m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 इक्वल टू 0. अब इसको बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट फैक्टर लेंगे m इज इक्वल टू -1, सेकंड फैक्टर लेंगे m इज इक्वल टू -1, और तो ये लास्ट टर्म बचेगा. अब इसके फिर से फैक्टर निकालोगे तो m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट. तो इस तरह रूट मिल गया इसका, m equal to -1, 4, and therefore the required general solution is pi is equal to c1 plus c2x plus c3 x square bracket complete e to the power minus x plus c4 e to the power 4x, where c1, c2, c3 and c4 are arbitrary constant. So this is the last problem of this video lecture. Thank you very much for listening me.